Hello students, welcome back to my channel. This is Dipali and in this video you will learn about MySQL functions. So let's start the session. Function. So first thing which we should learn is what is function. A function is a predefined program routine that takes some or no values, performs a predefined operation on them and returns the result of operation. Basically what we are doing in a function is a predefined program routine. That means already we have defined some task in a function and we are calling that particular function for performing that particular task. Fine. So it takes some or no values. That means your function can be parameterized or non parameterized. आपका कोई भी एक फंक्शन है उसके अंदर आप वैल्यू डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो. ठीक है. फंक्शन बेसिकली है क्या? फंक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जो पहले से बना बनाया है, हमें जस्ट उसको यूज करना है. सो परफॉर्म्स अ प्रीडिफाइंड ऑपरेशन ऑन दैम एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन. जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो उस पर पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म करेगा एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट. फाइन. सो on a broader category there are two types of functions. First is single row function and another is multiple row function. Fine. So what is single row function? Single row functions are the one who works on a single row and return one output per row. That means ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो पे वर्क करता हो. ठीक है. और जैसे ही उसने उस रो पे पर्टिकुलरली काम खत्म करा, उसने आपको आउटपुट दे दिया उसका. जैसे एग्जांपल है लेंथ एंड केस कन्वर्जन फंक्शन आर सिंगल रो फंक्शन. लेंथ फंक्शन बेसिकली करता क्या है? सपोज आपका एक कॉलम है नेम, आपने वहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज करा, तो हर एक नेम की कितनी लेंथ है. दैट मीन्स सपोज योर नेम इज कनक. फाइन. सो KANAK. फाइन. कनक में कितने लेटर्स हैं? टोटल 5 हैं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 5. सो दैट मीन सिंगल रो फंक्शन विल रिटर्न 5 फॉर द नेम कनक. फाइन. सो सिंगल रो फंक्शन क्या कर रहा है? एक एक रो को कंप्यूट कर रहा है और उसका रिजल्ट दे रहा है. फाइन. नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल रो फंक्शंस. मल्टीपल रो फंक्शंस वर्क अपॉन ग्रुप्स ऑफ रो एंड रिटर्न वन रिजल्ट फॉर द कंप्लीट सेट ऑफ रोज. देखो उसमें होता क्या है, पूरी सारी रोज पे एक साथ वर्क करता है ये. जैसे मैंने आपको अभी बोला, सपोज अमाउंट नाम का कॉलम है, उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, तो मल्टीपल रो फंक्शन क्या करेगा? एक साथ उन 5 वैल्यूज को कंप्यूट करेगा, देन वो रिजल्ट देगा. फाइन. सो मल्टीपल रो फंक्शन किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन ग्रुप ऑफ रोज, वेयर एज सिंगल रो फंक्शन वर्क्स ऑन अ सिंगल रो. सो that's why we can also say multiple row function is also known as group functions. Let's move to the next slide. String functions. देखो अब string functions क्या है? जितने भी different टाइप के string function है, that we will discuss over here. So basically string functions हम किस पे काम करेंगे? strings के ऊपर काम करेंगे. strings क्या होती है? group of characters is known as string. So first is concat function. What is concat function? This function is used to add 2 or more expressions together. That means why we are using the concat function? When we want to concat 1 or 2 or more than the expressions together, then we can use concat function. So for all these functions I will show you their practical implementation simultaneously. So I have opened MySQL as well. So let's see. This is the SQL window and now I am going to perform concat function over here so that you can also see how you are going to perform this function. So basically if I want to perform a function and अगर मुझे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है और वो अगर किसी टेबल पे बेस्ड नहीं है, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस
यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, डायरेक्टली आई कैन राइट द नेम ऑफ द फंक्शन. सो हियर आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग. आई एम राइटिंग select concat. So my function name is what? My function name is concat. What I want to concat? I want to concat, suppose name of the student ले लेते हैं कोई भी. Fine. Rajat Gupta. Fine. So I have taken a name Rajat Gupta. It's clear to all. I hope it's visible to all of you. Fine. Now it's clear. So select concat Rajat Gupta. So what it will return? It will return you Rajat Gupta as a output. See over here. And last time I also told you about the alias name. So we can also write here as full name. Fine. So what it will do? It will display full name. See here, it is displaying full name instead of what? This function name. So basically when we are using alias name, when we want at a time of result some qualified name should be displayed over here, fine, or some meaningful name should be displayed over here, that time we can use the alias name. Fine. So अब concat इसमें तो अभी हमने क्या करा, सिंपल हमने strings concat करी. We can also concat more than 2 strings. फाइन. अब हमें क्या करना है, सपोज अपनी वही टेबल, फर्स्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द डेटाबेस. यूज आई गेस माई डेटाबेस नेम इज क्लास 12th. Then I have created a table student, I guess. So I am selecting my table student, select asterisk from student. Fine. अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके नेम और एड्रेस कॉन्कैटिनेट करने हैं. फाइन, क्योंकि हमने लास्ट नेम तो लिया नहीं, अदरवाइज वी कैन कॉन्कैटिनेट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अ टाइम फॉर क्रिएटिंग वन मोर कॉलम हैविंग द लास्ट नेम देन कॉन्कैटिंग both the things. Instead of that I will combining name and address together, or what do you say, I should create last name column. Create कर लेते हैं चलो last name, it would be better. So what I have to write, alter table student, add column. I am writing the column name, that is L name. Fine. And as well as I have to write data type, that is varchar 20 I am taking. Fine. हार्ड हो गया. अब हमें क्या करना है, सिंपली अपडेट करना है. सो अपडेट अपडेट स्टूडेंट सेट L name equals to, कुछ भी लिख देते हैं, शर्मा, where what's your student ID, where student ID is equal to 1. Fine. Oops, wait a minute, I have to close this operation because I have used the semicolon over here. So just wait. I have written a query, update table student set L name Sharma where ID equals to 1. Let's execute it. What I have missed over here, at a time of update we should not write that table, we have to write directly update student. Fine.
wait, my column name is SID, so I have to write SID instead of ID. Fine, one row has been changed. For the 2 also I want to write, just I am giving here Gupta. Fine. Now it's fine. Now I want to see the records of my table, so I am going to write select asterisk from student. I am telling you each and every step in detail so that all of you will not find any kind of difficulty. So observe each and every steps and see the things very carefully. Fine. So what I have written, I have created a table having a name student in which I am having the 4 column. Now I want to use the concat operation on S name and L name. So what I will write here, I can write select concat. What to column I want to concat, I have to write the name, S name and L name. Case sensitive नहीं है SQL, so capital small doesn't matter. As name. Fine, मैंने कॉलम का नाम दे दिया as name. We have to specify the table name over here because now we are performing an operation on table. So write down from student. Fine. As you can see the output over here, name रोहित शर्मा, रोहित गुप्ता. फाइन. अब हमें प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम एक है कि स्पेस नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना. You want to include the space. So how can you include the space over here? Just see. For giving the space, what we have to go do within the same query, just add something over here, that is space. I told you no, more than one string you can concatenate. So here I am going to concatenate first name and last name, and in between them I want to give the space. Fine. So just press the enter. See the output. Spaces are there. So it's all about concat. You can also concat more than 2 columns over here. So what is the use of concat? It is used to concatenate more 2 or more columns or strings. Clear? So let's move on the next function, that is instr, INSTR. So it returns the position of the first occurrence of the string in another string. तो बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन ये बताता है कि कोई भी एक कैरेक्टर है उसकी पोजीशन क्या है दूसरी स्ट्रिंग के अंदर. सो देखते हैं इसको भी प्रैक्टिकली. आई एम गोइंग टू राइट सेलेक्ट INSTR, दैट मीन्स इन स्ट्रिंग फंक्शन. व्हाट I want to, in which string I want to find, I have to write the string. मेरे को यहाँ पे देखो string लिखनी पड़ेगी. I have written the string informatics. Clear? And at what position I want to find the character. Basically देखो उसमें 2 arguments पास करते हैं हम. फर्स्ट और argument में हम क्या लिखते हैं, वो string लिखते हैं, और सेकेंड argument में हम वो वाली string लिखते हैं जो हमें ये देखना होता है कि इसकी फर्स्ट occurrence किस नंबर पे है या किस लेटर पे है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो आई कितने हैं आपके, एक तो ये वाला आई है फर्स्ट पोजीशन पे और एक यहाँ पे आई है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई की अक्रेंस देखनी है मुझे. फाइन. सो फर्स्ट अक्रेंस दिखाएगा, याद रखना ये. तो फर्स्ट अक्रेंस क्या है 1, आई की फर्स्ट अक्रेंस क्या है 1. तो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है. क्लियर है, उसकी जो फर्स्ट अक्रेंस है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है. यहाँ तो मैंने एक सिंगल अल्फ़ाबेट लिया है, आप ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो. जैसे आई एम गोइंग टू राइट फॉर
तो 4 कौन से इंडेक्स पे है? 3. वाई 3? आप यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो f किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो जो भी आपका फर्स्ट अकरेंस होता है ये वो रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट बी केयरफुल एंड लिसन इट केयरफुली। बेसिकली इन स्ट्रिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वो स्ट्रिंग लेते हैं जो हमने जो इनपुट कर दी। सेकेंड स्ट्रिंग जो होती है वो हम सब स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग में पहली बार कब आ रही है। फाइन, तो ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में फर्स्ट टाइम कौन से इंडेक्स पे आ रही है? 3rd पे आ रही है, क्योंकि f कहाँ पर आ रहा है? 3 पे आ रहा है। फाइन, सो इट विल रिटर्न यू 3। तो करता क्या है, ये फर्स्ट अकरेंस का पोजीशन रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज एल केस और लोअर केस। लोअर केस बेसिकली करेगा क्या, जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करोगे उसको वो लोअर केस में लिख देगा। अगर हम देखते हैं, अपनी टेबल देख लेते हैं भाई, हमने जो टेबल बनाई थी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एस नेम में आर कैपिटल है, ठीक है। तो अगर हम एल केस किस में लगाना चाहते हैं, हम लगाना चाहते हैं एस नेम के अंदर। फाइन, तो ये करेगा क्या, एस नेम के जितने भी लेटर्स हैं उनको किस में कर देगा? लोअर केस में कर देगा। सो आई एम गोइंग टू राइट सेलेक्ट एल केस और लोअर, दोनों में से आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, बोथ द फंक्शंस आर सेम, ओनली नेम इज डिफरेंट। सेलेक्ट एल केस, क्या कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, हमने वो कॉलम का नाम लिखना है फ्रॉम, नाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल दैट इज स्टूडेंट। फाइन, तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, रोहित का आर भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? स्मॉल हो गया। फाइन, सो दिस इज द यूज ऑफ योर एल केस फंक्शन। नेक्स्ट इज यू केस और अपर फंक्शन। इट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू द अपर केस। तो यू केस क्या करेगा, आपके जितने भी कैरेक्टर्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अपर केस में। तो सेम कॉलम के अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं? यू केस फंक्शन यूज कर लेते हैं। फाइन, सो नाउ यू कैन सी रोहित के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में हो गए? कैप्स में, कैपिटल में हो गए। फाइन, नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट। सो ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। So let's see the practical. This thing will clear you when you will see the practical. First let me scroll down the screen. Yes, now see here what I will write. I will write select command, then I will write left. अब same मैंने क्या लिख दिया, informatics. Fine, I have written informatics. आफ्टरवर्ड्स आई हैव टू राइट कि कौन से इंडेक्स पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा। सो मैंने क्या लिखा? 5। फाइन, तो हम देखो कर क्या रहे हैं, हम लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेफ्ट क्या होता है आपका? लेफ्ट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड राइट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेफ्ट में बेसिकली ये क्या करेगा, किससे स्टार्ट करेगा? ये आई से स्टार्ट करेगा। क्लियर, किससे स्टार्ट करेगा? आई से स्टार्ट करेगा। कितने कैरेक्टर्स? 5 कैरेक्टर्स। सो कौन कौन से आने चाहिए? आई से 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से हुए? इन फॉर हुए ना। फाइन, क्लियर है। अगेन देख लो, अगर आप यहाँ पर लिखोगे 6 तो एम भी इंक्लूड हो जाएगा। फाइन, सो लेफ्ट मीन्स लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और राइट मीन्स यहाँ से काउंट करने स्टार्ट करेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन आई गेस राइट ही होगा। एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। सो राइट भी देख लेते हैं, सेम है। राइट में बस क्या करेगा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो राइट लिखते हैं। राइट में क्या करा इसने, राइट साइड से स्टार्ट करा और राइट साइड से 6 कैरेक्टर्स क्या होंगे वो उसने रिटर्न कर दी, MATICS। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, वो क्या कि अगर हमारे स्ट्रिंग के बीच में कुछ स्पेसेस भी आते हैं, फाइन, तो वो स्पेस भी काउंट होता है आपका इंडेक्स में। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक, फाइन। सो अब जो 6 कैरेक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, 1 is C, second is A, third is R, fourth is P, fifth is space and sixth is this S। तो आपको स्ट्रिंग क्या मिलेगी, S स्पेस प्रैक। फाइन, क्लियर है।
दैट मीन्स जब भी हम ये नंबर्स लिखते हैं तो स्पेसेस भी क्या करता है, स्पेस जो होते हैं वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेसेस को भी स्टोर करने के लिए हमें एरे बनाना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, तभी हमें स्पेस मिलते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको कहा था आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, एस देन प्राक। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ। लेंथ मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। फाइन। सो अगर आप सिंपल लिखते हो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मेरी सेम स्ट्रिंग है और मेरे को इसकी लेंथ पता करनी है। फाइन। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, यू कैन कैलकुलेट, बट आई एम परफॉर्मिंग द फंक्शन ओवर हियर 16। इस लेंथ में इसने क्या करा है, इस लेंथ में इसने स्पेस भी काउंट करा है, इंक्लूडिंग द स्पेस द लेंथ इज 16। फाइन। तो स्पेस इंक्लूड करते हैं लेंथ में। लेट मी स्क्रॉल डाउन। नाउ वी आर ट्राइंग द लेंथ विद सम कॉलम। क्लियर? तो अब हम एल नेम या एफ नेम, जो भी हमारा एस नेम कॉलम था, उसके साथ यूज करते हैं लेंथ फंक्शन। सो आई एम राइटिंग द क्वेरी, सेलेक्ट, आई वॉन्ट टू सी द नेम ऑल्सो, सो आई एम राइटिंग नेम, सो दैट आपको पता लग जाए हर नेम की लेंथ क्या है। देन आई एम राइटिंग द लेंथ फंक्शन। लेंथ में हमें किसकी लेंथ काउंट करनी है, एस नेम की, फ्रॉम you have to write the table name, that is student. Fine. So रोहित में कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या लेंथ है रोहित की, 5। सो यहाँ पर क्या लेंथ रिटर्न कर रहा है ये, 5। फाइन। आई होप दिस फंक्शन इज क्लियर टू ऑल। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करके देता है सब स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से। Fine. So it is used to abstract a substring from a string. So again I am writing a function. ये यूज कर लेते हैं, select substring. Fine. अब substring के अंदर हमें पैरामीटर्स क्या पास करने हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट हमें पास करनी होती है स्ट्रिंग, उसके बाद हमें पास करना होता है इंडेक्स, कि किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। फाइन। मैंने कहा 7th, तो 7th इंडेक्स क्या होगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। फाइन। सो ए से स्टार्ट करना चाहिए इसे। तो इसने देखो ध्यान से देखना, ए से स्टार्ट करा और कहाँ तक रिटर्न करी स्ट्रिंग, एंड इंडेक्स तक। फाइन। इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रिटर्न द स्ट्रिंग टिल एंड इंडेक्स। अब मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करना है और एंड इंडेक्स भी मुझे स्पेसिफाई करना है। फाइन। मैंने कहा 7 से लेकर 10 तक ही करो। 7 से कहाँ तक करो, 10 तक करो। तो 7, 8, 9, 10 कहाँ तक आएगा, ATI। 7 से लेकर कहाँ तक करो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7 से लेकर 10 तक करो। 7 से लेकर 10 तक का क्या मतलब है, 7 से स्टार्ट करेगा और उसके बाद 10 कैरेक्टर्स तक लेगा। ठीक है। 7 के बाद 10 इंडेक्स तक लेगा। तो 7th के बाद 10 इंडेक्स अगर आप देखोगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्ट 10 ही है यहाँ पे। तो हम इसको 5 कर देते हैं। 7 के बाद कहाँ तक लेगा, 7 से 5 और लेगा, तो 7 8 9 10 11, दैट मीन्स 11 इंडेक्स तक लेगा। तो उससे क्या मीन है, 7 8 9 10 11। तो क्या आना चाहिए, ATICS। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, 7 से 7 तक ले। 7 से 7 मीन्स स्पेस भी लेगा एंड P भी लेगा। स्टार्ट करेगा 7th इंडेक्स से। 7th इंडेक्स हमारा क्या है, A है। उसके बाद A इंक्लूडिंग A 7 और इंक्रीज करेगा। फाइन। जैसा मैंने आपको कहा था, ATICS और साथ में क्या आ रहा है, P भी आ रहा है। क्लियर बेटा? ये सारे फंक्शंस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेना साथ के साथ, और आफ्टर सीइंग द वीडियो अगेन यू कैन स्टार्ट एंड implement all the function in the practical. Fine. Then only this will clear to you. नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, आपके स्पेसेस रिमूव करता है। जैसे आपकी यही स्ट्रिंग है सेम, इसके अंदर हमने क्या करा,
स्पेसेस ऐड कर दिए, यहाँ पर भी स्पेस ऐड कर दिए और स्टार्टिंग में भी स्पेसेस ऐड कर दिए। क्लियर? सो बेसिकली ट्रिम फंक्शन का क्या यूज़ है? ट्रिम फंक्शन आपके जितने भी स्पेसेस आप ऐड कर रहे हो उसको रिमूव करके आपको आउटपुट दे देगा। सॉरी, मेरे को ट्रिम फंक्शन यूज़ करना था विद इन द सब स्ट्रिंग। आई हैव जस्ट including the spaces, but I haven't mentioned I haven't changed the name of the function, so I have to write them over here. Fine. आउटपुट में क्या करा उसने? लीडिंग एंड ट्रेल स्पेसेस रिमूव कर दिए, स्टार्ट के स्पेसेस और एंड के स्पेसेस। फाइन। सो इसके अंदर भी दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है एल ट्रिम और एक होता है आर ट्रिम फंक्शन। आर ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रेल स्पेसेस रिमूव करता है स्ट्रिंग में से। ट्रेल स्पेसेस का क्या मीनिंग है प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। जस्ट कम हियर एंड यूज दिस फंक्शन आर ट्रिम। देखो आर ट्रिम में क्या करा इसने, क्या करा इसने, राइट हैंड साइड के स्पेसेस रिमूव करे। तो राइट हैंड साइड आपका ये होता है ना, तो यहाँ तो हमें क्लियर ही नहीं होगा कि स्पेसेस रिमूव हुए या नहीं हुए, लेकिन हम एल ट्रिम फंक्शन यहाँ यूज़ करके देख लेते हैं। बिकॉज जैसे ही हम एल ट्रिम फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, आपके लेफ्ट मोस्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्ट मोस्ट साइड पे। बिकॉज एल ट्रिम क्या करेगा, आपके रिमूव करेगा लीडिंग स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। लीडिंग मतलब स्टार्टिंग के स्पेस। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेते हैं, एल ट्रिम यूज़ करते हैं। एल ट्रिम ने देखो क्या करा, एज आई टोल्ड यू, एल ट्रिम क्या करेगा, आपके लेफ्ट मोस्ट साइड से सारे स्पेसेस रिमूव कर देगा। तो लेफ्ट से अगर सारे स्पेसेस रिमूव कर देगा तो आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, आपकी जो स्ट्रिंग है वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। फाइन। सो ये फंक्शन जब यूज होते हैं बेसिकली जब आपका कोई भी डेटा जो आपने फेच करा हो, कहीं से निकाला हो, उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस हैं। अगर आपको राइट के स्पेसेस रिमूव करने हैं तो आप आर ट्रिम यूज करना, ठीक है। लेफ्ट के स्पेसेस यू रिमूव करने होंगे तो एल ट्रिम यूज करना। अगर दोनों साइड के स्पेसेस रिमूव करने होंगे देन यू कैन यूज द ट्रिम फंक्शन। फाइन। मिड फंक्शन क्या करता है? मिड फंक्शन भी आपका सब स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करता है। फाइन। तो उसके अंदर भी हमें एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स देने होते हैं और एटमोस्ट 3 पैरामीटर्स देने होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आपका स्ट्रिंग होता है, सेकेंड पोजिशन होती है और थर्ड होता है लेंथ। So again I am coming to the same substring function. Instead of substring, what I will write over here, I will write mid function. Let me scroll down the screen. Fine. So अब देखिए मिड में मैंने करा क्या है, मिड में मैंने स्टार्ट करा है किससे, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट होता है आपका स्ट्रिंग, सेकेंड होती है आपकी पोजीशन की एट विच पोजीशन यू वांट टू स्टार्ट, और नेक्स्ट इंडेक्स होता है आपका कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक जाना है। तो थोड़ा सा इस बार चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोला स्टार्टिंग पोजीशन थर्ड है, थर्ड से कहाँ तक जाना है, 7th पे। तो थर्ड क्या है, एफ है, एफ से 7th पोजीशन काउंट करेगा। दैट मीन्स FORMATI। फाइन। क्या क्या ये इंक्लूड कराएगा, FOR, ये देखो ऊपर क्या क्या ये इंक्लूड कराएगा, FORMATI। बिकॉज 7 कैरेक्टर्स क्या होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, एफ से। एफ का थर्ड प्लेस देखो क्या होगा, आपकी स्ट्रिंग में थर्ड प्लेस क्या आएगा, एफ आएगा ना। फर्स्ट पे तो आई है, सेकंड पे एन है और थर्ड पे क्या हो गया, एफ। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, एफ से, और कहाँ तक चलेगा, 7th पोजीशन तक, 7 स्पेसेस और लेगा। तो एफ से लेकर कहाँ तक चलेगा, आई तक चलेगा। क्लियर? क्लियर टू ऑल? ओके। देन नेक्स्ट फंक्शन इज न्यूमेरिक फंक्शंस। देखो न्यूमेरिक से ही क्लियर है, किस पे परफॉर्म करेंगे, नंबर्स पे परफॉर्म करेंगे। क्लियर? कौन सा फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शंस किस पे परफॉर्म करेंगे, हम लोग नंबर्स पे परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट है एबीएस। एबीएस फंक्शन का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, सो प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको। वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली करता क्या है, आप अगर पॉजिटिव वैल्यू दोगे तब भी पॉजिटिव रिटर्न करेगा, और नेगेटिव वैल्यू दोगे तब भी ये क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर सेलेक्ट ABS। ABS स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट माइनस 34.5
4. फाइन, जो भी आपको देना आप वो दे सकते हो. मेरे को क्या रिटर्न करा इसने, पॉजिटिव 34.4. और ऐसा नहीं है कि अगर हम पॉजिटिव देंगे तो नेगेटिव रिटर्न कर देगा, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट नेगेटिव साइंस. फाइन. So next function in the category of numeric functions, that is ceil. Return the smallest integer that is increase or equal to a number. What is the meaning of this particular line? देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा ceil function यूज़ करा. Clear? We have written CEIL, that is ceil function. अब सील के अंदर क्या देना है, मुझे एक वैल्यू देनी है. आई हैव रिटन अ वैल्यू, लाइक सिमिलर वैल्यू मैंने ले दी. क्या लिखा मैंने, 34.4. तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ये रिटर्न करके देगा वैल्यू क्या, दैट इज नॉट लेस देन द पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. जो भी पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है उससे बड़ी ही वैल्यू देगा. दैट मीन्स अगर हम बेसिकली देखें तो 34.4 करते हैं तो हमें 34 आउटपुट आता है राउंड ऑफ के केस में. बट सील के अंदर ये क्या दे रहा है मुझे आउटपुट, ये मुझे आउटपुट दे रहा है 35. क्लियर. तो 35 देने का मतलब ये क्या है, ये हमेशा आपको हाईएस्ट राउंड ऑफ ही करके देता है. ठीक है. अगर आप यहाँ पे 7 लिखोगे देन व्हाट इट विल गिव, अगेन इट विल गिव 35. तो दैट मीन्स आपका नंबर यहाँ पे चाहे पॉइंट के बाद छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये हमेशा आपको हाईएस्ट राउंड ऑफ ही निकाल के देगा. कौन, सील. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोर. फ्लोर इज द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू अ नंबर. तो जैसे हमने अभी सील में पढ़ा, फ्लोर क्या करेगा, उसका ऑलमोस्ट अपोजिट ही है. तो देख लेते हैं फ्लोर में. फ्लोर में उसने क्या करा, 34 रिटर्न करा. 34 ही आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग तो, बट 34.7 देंगे तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, 34 ही रिटर्न करेगा. दैट मीन्स सील क्या करता है, हमेशा हाईएस्ट राउंड ऑफ देखता है, और फ्लोर क्या करता है, हमेशा लोएस्ट राउंड ऑफ देखता है. ठीक है. क्लियर है सबको. नेक्स्ट फंक्शन में मूव करते हैं. मोड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर. तो मोड क्या हमें करके देता है, रिटर्न क्या करके देता है, रिमाइंडर रिटर्न करके देता है. तो यूज करके देख लेते हैं जी. मोड फंक्शन, आई एम राइटिंग ओवर हेयर मोड. एंड मोड के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट नंबर इज योर वैल्यू. आई हैव रिटन अ वैल्यू 100. किससे डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं. क्लियर है. तो 9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11 पे 99 आएगा. तो आपकी वैल्यू क्या बचनी चाहिए भाई, 1 बचना चाहिए. आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए. आ रहा है 1 रिमाइंडर. फाइन. यहाँ पे 1 आ रहा है ना रिमाइंडर. सो इट्स क्लियर. मोड क्या करता है, फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट देते हो आप मोड फंक्शन के अंदर वो आप देते हो वैल्यू, और दूसरा आप क्या देते हो, डिवाइजर. फाइन. और ये रिटर्न क्या करके दे देता है आपको, रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करके दे देता है. नेक्स्ट है आपका पाव और पावर फंक्शन. पावर फंक्शन क्या करता है, जो भी आप नंबर की पावर लिखोगे, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट पावर, आपने लिखा 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 मीन्स क्या हो गया, 2 को हमने 4 टाइम्स लिखा. सो 2 को अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 16 आएगा. सो द आउटपुट इज 16. फाइन. तो पावर फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर फर्स्ट हम पावर फंक्शन में क्या लिखते हैं, फर्स्ट हम वैल्यू लिखते हैं, दूसरा उसका क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंट लिखते हैं. क्लियर. So according to the exponent it will give you the result. For example we can take one more example, 10 to the power 3, with it will return you 1000. Clear. Okay, now let's move to the next function. Rand function will give you some random numbers. Fine. Rand function is used to give you some random numbers. See the practical of random function, that is select rand. Fine. So it will give you any random number between 0 to 1. 0 से 1 के बीच में कोई भी ये रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है. सी पहले इसने क्या जनरेट करके दिया मुझे, 0.650 समथिंग, एंड अब जनरेट करके दिया 0.877 समथिंग. सो रैंडम नंबर विल गिव यू एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1. फाइन. सो नेक्स्ट फंक्शन इज again numeric function, in which we will see the round. Round is the one of the important function which is also important as per the exam. So round
numbers give you a obviously a round off till a specified value. Fine. So see the practical of round function. In the round you have to pass the value as well as the precision. Precision का क्या मतलब है, देखो मैंने लिखा 2349.34. फाइन. मैंने यहाँ पे प्रिसीशन क्या डाला, मैंने यहाँ पे प्रिसीशन वैल्यू डाली 1. फाइन. सो उसने मुझे क्या आउटपुट दिया, 2345.3. बेसिकली करता है क्या राउंड फंक्शन, ध्यान से समझना. आपका जो भी नंबर है, 1 का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू डिस्प्ले करानी है. उसने बोला डेसिमल के बाद एक वैल्यू डिस्प्ले करानी है. अब अगर आप राउंड फंक्शन की बात करो तो नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखा है, 34 लिखा है ना. तो 34 तो क्या है, आपका लेस नंबर है, तो इसलिए इसने क्या करा, 3 ही रहने दिया राउंड ऑफ में. बट अगर आपका यहाँ पे नंबर क्या हो जाता, 54 हो जाता, तो इसको क्या कर देना चाहिए था, 2345.4. ठीक है. पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. तो बेसिकली ये क्या होता है, आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देखनी है, या आप वो लिखते हो कहाँ पर, आपके यहाँ पे दैट मीन्स प्रिसीशन में. और यहाँ से आपको क्या देखना होता है, यहाँ से आपको बेसिकली क्या देखना होता है कि ये नंबर जो है वो आपका राउंड होने के बाद क्या आएगा. अगर यहाँ पर वैल्यू क्या है, दैट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू से आप राउंड देखते हो ना, राउंड ऑफ नंबर आपने पहले भी बहुत क्लासेस में पढ़े हैं. यहीं पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर दूँ 2, दैट मीन्स ये अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक दिखाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक. दैट मीन्स पॉइंट के बाद 3, 5 दोनों दिखाएगा. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाएगा. और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4, तो ये क्या रहने देगा, 3, 5 ही रहने देगा. ठीक है, क्या रहने देगा, 3, 5 ही रहने देगा इस केस में. ठीक है, 3, 5 ही रहने दिया. बट अगर आपकी लास्ट वैल्यू क्या हो जाती, बड़ी हो जाती, दैट मीन्स 5 या 5 से ग्रेटर हो जाती, तो उसको क्या कर देता, 6 कर देता. ठीक है. अब यही राउंड नंबर हम देखते हैं नेगेटिव में. अगर हमने यहाँ पे लिखा होता -1, तो -1 मतलब होता है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में. फाइन. डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो वैल्यू क्या कर देगा, ये राउंड कर देगा. तो बेसिकली इसको क्या कर दिया इसने, डायरेक्ट 0 कर दिया. क्लियर. पॉजिटिव मतलब होता है डेसिमल का राइट हैंड साइड, नेगेटिव होता है डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर है. तो एंड में क्या आएगा यहाँ पे 2300. ये जो वैल्यू है आपकी 45 है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे था 45, तो 45 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा. बट अगर यहाँ 44 होता तो राउंड ऑफ करके आपका सेम नंबर क्या आता, अगर आपका यहाँ पे 44 होता तो राउंड ऑफ करके सेम नंबर क्या आता, -1 पे देखोगे ना आप, तो -1 पे ये नंबर क्या हो जाता, 40 हो जाता. बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसको वापस. अगर -1 करा हमने, 45 है, तो 45 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा ना. 44 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या लिखोगे, 40 लिखोगे. ठीक है. तो -1 में हम फर्स्ट पोजीशन देखते हो, तो फर्स्ट पोजीशन में नंबर अगर 4 है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 होना ही होना है. इसका नेक्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा. लेकिन यहाँ पर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्रीवियस नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट साइन क्या करेगा, बेसिकली साइन रिटर्न करके देगा आपको नंबर का. जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वो -1, तो साइन क्या रिटर्न करके देगा कि ये नंबर किसका है, माइनस का है, तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, माइनस रिटर्न कर देगा. नंबर बढ़ा लो आप, माइनस का साइन रिटर्न कर देगा. और अगर यही नंबर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव 1 रिटर्न कर देगा आपको. क्लियर. नेक्स्ट SQRT स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है बेसिकली ये. तो हमने क्या फंक्शन यूज करना है अब, SQRT किसका स्क्वायर रूट देखना है, 256 का देख लें. 256 का देख लेते हैं. स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 होता है. आई गेस 16 आ रहा है. क्लियर. और कोई ऐसी वैल्यू जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, लाइक 250, तो डेसिमल पॉइंट्स में दे देगा. क्लियर है. तो ये फंक्शंस क्या हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं. ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट अ नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस. तो जो भी आपका स्पेसिफाइड नंबर होगा डेसिमल प्लेस तक, वो उस वैल्यू को क्या करेगा, ट्रंकेट कर देगा. तो ट्रंकेट के अंदर हमें क्या लेना होता है, सेम 2 पैरामीटर्स लेंगे ट्रंकेट के अंदर भी.
So I am writing select truncate. Let me scroll down. ट्रंकेट लिखने के बाद फर्स्ट क्या लिखना होता है? फर्स्ट हमें लिखनी होती है वैल्यू. तो वैल्यू मैंने लिख ली सपोज 1.223. फाइन. अब मेरे को ट्रंकेट करना है. कौन सी प्लेस से ट्रंकेट करना है? प्रिसीशन बताना पड़ेगा. मैंने बोला 1 क्या? डेसिमल के बाद 1. फाइन. सो डेसिमल के बाद इसने क्या करा? 1 वैल्यू तक ही लिया सिर्फ. ठीक है. इसी के अंदर अगर हमारा नंबर सपोज यहाँ पर होता 5, तो ये क्या कर देगा? 1.2 ही दे रहा है. ठीक है. 253 में भी क्या देगा? यहाँ पे 1.2 ही देगा. दैट मीन्स ट्रंकेट के अंदर हमें ट्रंकेट करने का क्या मतलब है? इस डेसिमल प्रिसीशन के बाद जैसे 1 कह रहा है तो 1 का मतलब ये होता है ना, इसके बाद की वैल्यूज हटा देगा. हटा देगा मतलब उसके जितने भी आप डेसिमल प्रिसीशन दोगे बस वहीं तक की वैल्यू शो करेगा और बाद की वो सारी वैल्यूज रिमूव कर देगा. ये राउंड ऑफ की तरह काम नहीं करता. राउंड ऑफ में अगर आप सेम फंक्शन यूज करते तो आपको यहाँ पर 1.3 दे देता. करके देख लेना. सेम एग्जाम्पल आप राउंड ऑफ से लिखना 1.253, 1 आपको क्या देगा? वो 1.3 देगा. बट ट्रंकेट का काम क्या है? जितने भी आप प्रिसीशन पॉइंट मेंशन कर रहे हो उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं वो रिमूव कर देना. जैसे अगर आप यहाँ 2 मेंशन करोगे तो ये क्या करेगा? 1.25 दिखाएगा. 3 को ये क्या करेगा? रिमूव करेगा. तो जो भी आप प्रिसीशन मेंशन करते हो उसके बाद की चीज़ें रिमूव कर देता है कौन? ट्रंकेट. नेक्स्ट देखते हैं भाई. नेक्स्ट है हमारा डेट फंक्शन. कर डेट क्या करेगा? आपको करंट डेट रिटर्न करके देगा. सेलेक्ट कर डेट. तो करंट डेट बता देगा भाई. करंट डेट आज की क्या है? 10th May 2020. फाइन. सो मैंने वीडियो कब बनाई है? 10th May 2020. तो इसने मेरी क्या करी है? सिस्टम की डेट दे दी. बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो होता है ईयर, मंथ और डेट. तो वही ये रिटर्न कर रहा है. नेक्स्ट आपका होता है sysdate फंक्शन. sysdate फंक्शन आपको क्या करता है? करंट डेट के साथ आपको टाइम भी रिटर्न करके देता है. ठीक है. तो दैट मीन्स अभी जो भी टाइम हो रहा है आपको सिस्टम की डेट के साथ टाइम भी रिटर्न करके देगा. दैट इज 10/5/2020 12:27 और 48 सेकेंड हो रहे हैं अभी. 12 hours 27 minutes and 48 सेकेंड. तो जो हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है ईयर, मंथ, डे और यहाँ पर होता है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन. दैट इज डेट. डेट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ डेट रिटर्न करके दे देगा मुझे. एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे हम? डेट. वेट अ मिनट. मैंने अभी आपको कहा क्या? डेट फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा? डेट एक्सट्रैक्ट करके देगा. बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेट मेंशन करनी पड़ेगी हमें. जैसे हमने मेंशन करा 2020, हमने मंथ मेंशन कर दिया 5, हमने डेट मेंशन कर दी 11. फाइन. और इसके साथ आप सपोज अगर आप टाइम भी मेंशन कर रहे हो यहाँ पे, तो टाइम मैंने मेंशन कर दिया अभी 9:09, देन 30, देन सेकेंड्स हम कुछ भी लिख सकते हैं. हमें क्या देगा इसमें से? सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करके देगा. तो आप देखो इसने सिर्फ क्या करा? पूरे डेट में से डेट निकाल के दे दी हमें. क्लियर. नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं. मंथ फंक्शन. ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ मंथ रिटर्न करके दे देगा. किस में से? गिवन डेट में से. क्या करके देगा हमें? मंथ रिटर्न करके दे देगा. ठीक है. तो मंथ अभी क्या है हमारा? 5th मंथ है. तो हमें इसने क्या कर दिया? मंथ रिटर्न कर दिया. देन ईयर. ईयर ऑब्वियसली क्या रिटर्न करके दे देगा? ईयर रिटर्न करके दे देगा. क्लियर है. सिमिलरली अगर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर लिखेंगे. अगर तो आर लिखेंगे तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा मुझे? ये आर्स रिटर्न करके दे देगा. ठीक है. तो ऐसे ही आप कुछ और फंक्शंस भी ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट फंक्शन पे मूव करते हैं. दैट इज डे नेम. डे नेम हमें क्या रिटर्न करके देगा? उस डे का नेम क्या है. जो भी डे है उसका नेम क्या है. तो इसी में हम ट्राई करते हैं क्या? डे नेम. मंडे है ना. आज 11th है और आज क्या है? मंडे है. सो इट इज़ गिविंग मी द डे ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ. जो भी मैंने डेट मेंशन करी है तो मंडे दे देगा. क्लियर.
नेक्स्ट है डे नेम के बाद डे ऑफ मंथ, कि इस मंथ का ये कौन सा दिन है, ठीक है। डे ऑफ मंथ का मतलब है इस महीने का ये कौन सा दिन है। सो डे ऑफ, इस मंथ का आज 11th है तो महीने का कौन सा दिन, आज 11th डे ही हुआ ना, 12th होगी तो 12th डे होगा, 13 होगी तो 13th डे होगा। डे ऑफ वीक, वीक का कौन सा दिन है, बेसिकली हमें यहाँ पे अब क्या लिखना है, डे ऑफ वीक, वीक का कौन सा दिन है, वीक का सेकेंड डे है, क्योंकि हमारा जो वीक है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, संडे से। संडे फर्स्ट डे होता है और जो मंडे होता है वो सेकेंड डे होता है। डे ऑफ ईयर, ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो 1 जनवरी से अब आप कैलकुलेट कर लेना हर मंथ के अकॉर्डिंग कि 11 मई को कौन सा दिन होगा ईयर का, तो ये वो कैलकुलेट कर देगा। 132 डे है कौन सा आपका, 11 मई जो है वो आपके ईयर का 132 डे है, बिकॉज आपका जो ये था लीप ईयर था, ठीक है। अगर आप विदाउट लीप ईयर देखोगे तो 131 आएगा। नेक्स्ट इज नाउ, नाउ का मतलब होता है रिटर्न करता है करंट डेट और टाइम। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं सेलेक्ट नाउ करना था सिर्फ, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट नाउ देन सी। तो उसने क्या करा, नाउ के अंदर आपको करंट डेट और टाइम रिटर्न कर दिया। क्लियर, क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, सिस डेट और नाउ में क्या डिफरेंस होता है, वो आप बताओगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस डेट और नाउ। बेसिकली मैं बता दूँ, स्लीप का चक्कर होता है, अगर हम स्लीप लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए तो नाउ के अंदर जो होता है वो क्या करेगा और सिस डेट में क्या करेगा, ये आपका होमवर्क है, आप फाइंड आउट करोगे। फाइन, जिसको समझना है वो मुझे कमेंट में लिख के पूछ लेना। नेक्स्ट है आपके एग्रीगेट फंक्शंस। फाइन, एग्रीगेट फंक्शंस जैसे मैंने आपको बताया क्या होते हैं, ग्रुप फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम an aggregate function is a function where the values of multiple rows are grouped together as input on certain criteria to form a single value from the significant meaning। तो पूरे ग्रुप में से एक सिंगल वैल्यू निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, सम फंक्शन है। इट इज़ यूज टू ऐड द वैल्यू ऑफ कॉलम। तो सम फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक कॉलम की वैल्यू को ऐड करके दे देगा मुझे। तो हम फीस टेबल देख लेते हैं अपनी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फीस, डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूज क्लास 12th, देन आई एम राइटिंग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फीस। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट जो है ना, अमाउंट कॉलम, इसको सम करना है। मैं स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम हो रही होगी आपको देखने में। का हमारा जो ये अमाउंट नाम का कॉलम है, मुझे क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। फाइन, सो उसके लिए क्वेरी लिखते हैं हम, इसका फोकस सेट करने में कई बार, यस। सो आई एम राइटिंग द क्वेरी, जस्ट सी हियर, सेलेक्ट सम, किसका सम करना है, अमाउंट, किस कॉलम में से करना है, किस टेबल में से करना है, फीस टेबल में से। क्लियर। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका सम था वो रिटर्न करके दे देगा, योर सम विल बी 25,000 ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने आपको करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन में, एवीजी। दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम। तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट एवीजी, देन जो भी आपका कॉलम है फ्रॉम स्टूडेंट, तो एवरेज हम निकाल लेते हैं। सेम आते हैं हम अपने MySQL पे, विद इन द सेम आई वॉन्ट टू फाइंड द एवरेज। तो एवरेज क्या होती है, आपका सम डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका सम क्या आया था, 25,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स ऑफ अमाउंट हैं, 3। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा, 8,333.3333 समथिंग। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन दैट इज मैक्स फंक्शन. मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा कॉलम में से. जैसे मैंने लिखा है सेलेक्ट मैक्स, कौन सी कॉलम, वो फ्रॉम जो भी आपकी टेबल है. क्लियर. तो हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं मैक्स फंक्शन. मैक्सिमम वैसे आपको पता लग रहा होगा 9000 है, तो मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न करके देना चाहिए, इसको 9000 रिटर्न करके देना चाहिए. क्लियर है. देन min फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम. ये क्या करेगा, आपको एक मिनिमम वैल्यू देगा. तो मैंने लिखा सेलेक्ट, क्या लिखना है, अब नेक्स्ट min लिखना है. सो इट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू विच इज 8000. डबल है कोई बात नहीं, फर्स्ट जो भी मिनिमम होती है वो रिटर्न कर देता है. नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट फंक्शन. दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम और नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल. तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट काउंट, जो भी आपको कॉलम लिखना है वो फ्रॉम स्टूडेंट. क्लियर. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेम कॉलम में हम यूज कर लेते हैं सेलेक्ट काउंट और अमाउंट. तो कितने टोटल नंबर ऑफ अमाउंट से 3 अमाउंट्स दे रखे थे ना, 8000, 9000 एंड 8000. तो यहाँ पे क्या रिटर्न करके दे रहा है 3. उससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो आप जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे एक टेबल में, ये वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा. क्लियर. सो बेसिकली ये एग्रीगेट्स फंक्शन है हमारे. सो क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है, नेम एनी 2 एग्रीगेट फंक्शंस, या वाइवा के टाइम पे भी पूछा जाता है नेम एनी 2 स्ट्रिंग फंक्शंस. एग्जाम में भी आ जाता है नेम एनी 2 स्ट्रिंग फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल. So these things are very important. This particular session is very important. That is all most covered your one full topic of functions. So see this video again. If you are having any doubt, then you can write the comment below. Fine. So if you like the video, students, then press like button, and if you have not subscribed this channel yet, subscribe this channel and share this video with your friends. I hope you like this video. Thank you for watching.